20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ਼ਾਕ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਕਿਲੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇਂਧ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ 15,000 ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੀ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 21,000 ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ 49,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 12,000 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਪੋਸਟਰ ਤੱਕ ਪਾੜੇ ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਐਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਡੀ ਜੀ ਨੇ 2 ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ 2 ਜੱਫੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਕੱਢੀਏ ਸਰ? ਇੱਕ ਅਮਨਜੀਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਪਦੀ। ਅਮਨਜੀਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਤਪਾਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵਰਕਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਖੋਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਲਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬੜੇ ਦਿੱਗਜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਲੋਕ। ਹਾਂ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਚਲੋ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ। ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪੈ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ BS6 ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਲਵੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ BS-VI ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਅੱਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਟ ਲਈ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਔਸਤ AQI 390 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ AQI ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ AQI 420 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਪ 4 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਮ ਵਰਕਰ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ये है कि पंजाब में 4 बाई इलेक्शन थे। बरनाला से हमारे जो संगरूर में आता है वो हमारे MP बन गए मीत हेयर जी, वो बरनाला सीट खाली हो गई थी। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग जी वो लुधियाना से MP बन गए तो गिद्दड़बाहा सीट खाली हो गई, वो MLA थे। डेरा बाबा नानक से जो MLA थे वो MP बन गए गुरदासपुर से, तो डेरा बाबा नानक सीट खाली हो गई। होशियारपुर से हमारे डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल हमारे MP बन गए तो चब्बेवाल सीट खाली हो गई। 4 सीटों का बाई इलेक्शन था और मैं आपको खुशी से बताना चाहता हूं उन 4 में से 3 को बड़ी जबरदस्त लीड से जीत के आए हैं। जो आम आदमी पार्टी के पास पहली बार आई हैं, तीनों सीट आम आदमी पार्टी ने पहली बार जीती हैं। वो 22 में इतनी आंधी चल रही थी तब भी नहीं आई थी, अब आ गई क्योंकि लोगों को कामों का पता चल गया। लोगों को अरविंद केजरीवाल के, लोगों को दिल्ली सरकार के, पंजाब सरकार के काम का करने का पता चल गया कि कैसे काम करते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी 22,000 से हारी है गिद्दड़बाहा में। 13 साल से उन्हीं का कब्जा था जी। 22,000 से हमारा कैंडिडेट जीता है गिद्दड़बाहा से। और जो अहंकार जो बोलता है, कई बार वो कहते हैं ना अहंकार और खुदा का बैर होता है। अहंकार था कांग्रेस के कुछ MPs के वहां डेरा बाबा नानक में 6,000 से उनकी पत्नी हारी है। ये तो टिकटें अपनी पत्नियों को देते हैं ना, इधर उधर तो इनको पता ही नहीं है ना क्या होता है। तो बीजेपी की 4 में से 3 पर जमानत जब्त है जी। अब दिल्ली में देख लेना आप कृपया। और चौथी में बड़ी मुश्किल से बची है। अगर अपील करते ना हम इलेक्शन कमीशन में कि इसकी भी जमानत रख लो, वो भी 20,000 रुपया छोड़ देंगे। कुछ चलो ये जमानत जब्ती समझो हमारी भी, पता नहीं कुछ मतों से ही बची है। मतलब जमानत क्या होती है? 20,000 रुपया डिपॉजिट करते हैं, अगर आपको 16% से कम वोट पड़ते हैं तो आपको वो 20,000 रुपया वापस नहीं मिलता। इसको बोलते हैं जमानत जब्त, ठीक है ना। तो 3 जगह से तो मिलेगा नहीं, चौथी जगह पे वो लेंगे नहीं, तो समझो चारों ही जमानत जब्त हो गई। अब दिल्ली में 70 में से बीजेपी को कितने 20,000 वापस करवाओगे? 0 करवा दो बस। 20,000 इनके लिए क्या है? हाँ, वही मैं तो कहूंगा अरविंद केजरीवाल जी को,
और राघव चड्ढा जी बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एससी डालो कि वो 20,000 कम से कम जनता के लिए तो यूज कर सकें, कि जो जमानत जब्त होती है वो पैसा जो है वो पब्लिक के लिए यूज कर सकें। ये वो पैसे हैं जो आपने एक रिजेक्ट बंदे को रिजेक्ट करके आपने पैसे दिए और ये पैसा आपको मिल रहा है। तो लोगों में ये भी कंपटीशन हो जाएगा, इसका भी 20,000 लेना है और 20,000 को बढ़ा के थोड़ा 50,000 या लाख भी करना चाहिए, ताकि पब्लिक के पास थोड़ा पैसा, तो जैसे सीएम साहब कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं, ये तो हर रोज ही इलेक्शन होनी चाहिए। इलेक्शन के समय तो नेता जो हैं वो काबू आते हैं, इलेक्शन के समय तो कहते हैं हम ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे। तो इसीलिए मुझे आज जब 12-1 बजे तक पता चला, सीएम साहब ने कहा दिल्ली आओ, दिल्ली के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और हम बड़े मंच पर ये बोलना चाहते हैं कि आम आदमी वो कुछ सोशल मीडिया पर या जो इनका ट्रोल मीडिया है, इनका पता नहीं कौन सा मीडिया है, तो ये करते रहते हैं ना, पता नहीं ये झाड़ू बिखर गया, झाड़ू खिलर गया, झाड़ू में से 1-2 वीक जो तीले होते हैं ना, वो अगर सफाई करते करते निकल भी जाएं, झाड़ू सफाई करता रहता है। अगर कमल के फूल में से एक पत्ती काट दो, वो कमल का फूल नहीं रहता। अगर पंजे में से एक उंगली काट दो, वो पंजा नहीं रहता। हमारा तो झाड़ू रहेगा, हमारा झाड़ू सफाई करता रहेगा। और पहले इस झाड़ू से हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। हम तो फकीर लोग हैं, हम तो छोड़ चुके हैं काम, पैसे कमाने वाले काम तो छोड़ चुके हैं जी। हमारा कोई बसों में हिस्सा नहीं है, हमारा कोई रेते की खड्डों में खन्नों में हिस्सा नहीं है। हम तो ये काम, वो गुलजार जी का एक शेर है कि पहले भी बाजार से खाली हाथ ही आते थे, उस समय पैसे नहीं होते थे, अब ख्वाहिश नहीं है। आते अब भी खाली हाथ ही हैं, तो अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, जनता खाली हाथ ना रहे, जनता की जेब भरी रहे, और जनता के बाजार जब जनता जाए तो उसका बटुआ जाए वो भरा रहे। यही रेवड़ी चर्चा हुई है, शुरू की गई है, वो यही है कि भाई आपके पैसे आपको दे रहे हैं, इसको रेवड़ी क्यों कह रहे हैं? रेवड़ियां मुफ्त की रेवड़ियां क्यों? जनता के पैसे को जनता में देने में क्या दिक्कत है? अगर ये रेवड़ी है मोदी साहब, तो 15 लाख वाला पापड़ कहां है? वो कहां गया पापड़? 15 लाख देंगे हर एक घर को। इस चक्कर में 2-3 घरों ने तो हमारे पंजाब में नोट गिनने वाली मशीनें भी ले ली भी। चलो 15 लाख आएगा, कौन सा 15 लाख? नोटबंदी करके 2-4 हजार बचा था घर पे, वो भी ले गए निकाल के। ठीक है ना, जीत के आए हैं और जीते हुए हैं और जीतते रहेंगे। और अगली बारी दिल्ली की है, दिल्ली के बाद फिर पंजाब की बारी है, पंजाब के। तो हमारा तो एक रिश्ता ऐसा बन गया है दिल्ली और पंजाब का कि हमारे वॉलंटियर जो हैं वो हमें कह रहे हैं जी कब जाना है दिल्ली। मैंने कहा जी अभी वहां इलेक्शन हुई है, अभी बाई इलेक्शन, उससे पहले पंचायत इलेक्शन भी जीत गए हम, 90% से ज्यादा सरपंच हमारे बन गए। अभी म्यूनिसिपल कारपोरेशन की इलेक्शन होगी दिसंबर में, मैंने कहा उसके बाद चले जाना। इतने ज्यादा, मतलब मैं कहूं जिसको पंजाबी में बोलते हैं, इतने ज्यादा वो काले हैं, जल्दबाजी में है कि हमें दिल्ली भेजो, जल्दी दिल्ली भेजो जी, जनवरी आ रही है, बस जनवरी फरवरी में हम दिल्ली में सरकार बनानी है। और आप भी एक वादा करो कि अरविंद केजरीवाल देश के इतिहास में ऐसा बंदा 2 बार जिसने सीएम का पद छोड़ दिया, 2 बार, वरना शमशान घाट की कमेटी का प्रधान बना दो भाई साहब, वो नहीं छोड़ता। 2 बार दिल्ली का पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। लोग जब दोबारा बनाएंगे तब बनूंगा, नहीं तो बनूंगा नहीं। इसके लिए तो जिगरा चाहिए ना, इसके लिए जिगरा चाहिए, इसके लिए जिगरा चाहिए, और जिगरा हमारे नेता के पास है। इसीलिए अगर वो कहते हैं ना कि लड़ती
तो ये आपके मन की भड़ास है असल में, और ये सच्चे दिल से निकली है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो फर्क कितना होता है, जब 2020 में इलेक्शन हो रहे थे दिल्ली के, तो रामलीला ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ी सभा की। मैं भी यहीं था, प्रचार कर रहा था, आपके मोहल्लों में भी मैं आया था, अभी भी आऊंगा। तो केजरीवाल साहब के साथ मैं बैठ के देख रहा था लाइव, बहुत रश था। अचानक से नारे लगने लगे, तो मैंने अरविंद जी को कहा, जी शपथ लेने की तैयारी करो, आप मुख्यमंत्री बन जाओगे। तो इन्होंने कहा, भगवंत आपको कैसे पता? मैंने कहा, जी नारे सुनकर पता चल गया। कहते नारे तो ठीक लग रहे हैं यार, रश भी बहुत है। मैंने कहा, सर रश बहुत है, नारे ठीक नहीं लग रहे। कहते कैसे? मैंने कहा, जी देखो तो सही, नारे लगाने से पता चल जाता है कि आप कैसे हो, आपका मूड कैसा है। स्टेज पर नारा लग रहा था हर हर मोदी, और लोग कह रहे थे हर हर मोदी। मैंने कहा, सर हाथ ऊपर जा रहा है, गर्दन नीचे जा रही है, ये दिहाड़ी पर आए हैं, ये वोट नहीं डालेंगे। वही काम हो गया भाई साहब। हर जगह पे दिहाड़ी पे ले जाते हैं ये कहने के लिए मोदी मोदी भाई साहब आप बता दीजिए, दिल से बता दीजिए, एक बंदे को भी कहा है कि केजरीवाल का नारा लगाना है? दिल से निकल रहा है ना। जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलता रहूंगा, आते हैं आपके पास भी, और दिल्ली जीतेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और मैं अब अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो पूरे देश को संबोधन करें, क्योंकि पूरा देश सुन रहा है, क्योंकि ये आज बहुत बड़ा दिन है, और आज के दिन इनका बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा देश सुनना चाहता है कि आने वाले दिनों में राजनीति की दशा और दिशा क्या होनी चाहिए। मेरी मुराद है आपकी तालियों के बीच अरविंद केजरीवाल साहब। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। दोस्तों, पंजाब में आज 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव हुए, उनके नतीजे आए हैं। 4 में से 3 सीटें आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीत गई है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को, जनता जनार्दन को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेतागण को, सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जैसा मान साहब ने अभी बताया, इसकी खास बात यह है, ये 3 सीटें जो जीते हैं, ये हमारी सीटें नहीं थी। इसके पहले ये तीनों सीटें पहली बार जीते हैं। 2022 की आंधी में भी ये तीनों सीटें हम नहीं जीते थे, तो ये तीनों सीटें पहली बार जीते हैं। 2022 में 117 में से 92 सीटें दी थी आम आदमी पार्टी को जनता ने। आज हमारी 95 सीटें हो गई है दिल्ली की, पंजाब के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि इन तीनों सीटों के ऊपर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई है, तीनों सीटों पर। दोस्तों, ये आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से देश की राजनीति में धमक की है, वो एक बहुत बड़ी बात है। पहली बार दिल्ली के लोगों ने हमें ढेर सारा प्यार दिया, विश्वास दिया, और 2013 दिसंबर में 49 दिन की हमारी सरकार बनी थी। 49 दिन की। उस 49 दिन की सरकार में हमने दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस की एक झलक दी थी इस देश को। हमने बिजली सस्ती कर दी, 49 दिन में पानी मुफ्त कर दिया, और दिल्ली में जगह जगह जो भ्रष्टाचार के खिलाफ वार हुआ,
उसको झलक, उस टाइम 28 सीट दी थी, 70 में से 28 सीट आई थी अपनी पहली बार। उसको देख के 1 साल के बाद 2015 में जनता ने 70 में से 67 सीट दी थी, 67 सीट्स। और जो 5 साल हमने काम किया, उसने पूरे देश में दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस को इस्टेब्लिश कर दिया। क्या है ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस? ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है कि आम आदमी की दिन ब दिन की जो सहूलियतें, आम आदमी की जो जिंदगी है, उसको कैसे बेहतर किया जाए। अभी तक इस देश के अंदर 70 साल में ये दूसरी पार्टियां जो हैं वो बात ही नहीं करती थी, जनता की बात ही नहीं करती थी, जनता की सहूलियत, बिजली, पानी, सड़क, इनकी बात ही नहीं करते थे। पहली बार हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली दी, हमने बिजली मुफ्त कर दी, हमने पानी मुफ्त कर दिया, हमने शानदार बच्चों के लिए स्कूल बनाए। एक आम आदमी क्या चाहता है? वो यही तो चाहता है मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। पेट काट के आम आदमी पहले प्राइवेट स्कूलों में भेजता था, अब दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में भेजना बंद कर दिया उसने, सरकारी स्कूल इतने शानदार बन गए। एक आम आदमी यही तो चाहता है कि घर में कोई बीमार हो जाए तो उसका अच्छा इलाज हो जाए, उसके लिए हमने शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए और उनका सारा इलाज मुफ्त कर दिया। बसों के अंदर महिलाओं का किराया मुफ्त कर दिया। एक तरफ हमने जो आम आदमी और गरीब आदमी और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का आदमी है, उसको हमने महंगाई से छुटकारा दिलाया और उसकी दिन ब दिन की जिंदगी को बेहतर किया, तो दूसरी तरफ हमने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शानदार बनाया। हमारे से पहले दिल्ली मेट्रो की 200 किलोमीटर की लाइन बनी थी, हमने 450 किलोमीटर की लाइन बना दी मात्र 9 साल में। हमारे से पहले 65 साल में दिल्ली में 62 फ्लाईओवर बने थे, 65 साल में हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बना दिए। पिछले 9 साल में 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनी है, 6800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, नालियां डली हैं। इतना विकास कभी नहीं हुआ दिल्ली का। सीसीटीवी कैमरे लगाए, स्ट्रीट लाइट्स लगाई पूरी दिल्ली के अंदर, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अब धीरे धीरे ये बात पूरे देश में फैलने लगी, तो यहां से पंजाब आते थे जाते थे लोग, आते थे जाते थे, तो पंजाब के लोगों को पता चला यार दिल्ली में इतना विकास हो रहा है, हमारा भी होना चाहिए। पंजाब भी बड़ा पीड़ित था 2 पार्टियों के राज से, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, इनका नंबर आता था ये लूटते थे, उनका नंबर आता था वो लूटते थे। तो 2022 में पंजाब ने ऐतिहासिक बहुमत दिया और 117 में से 92 सीट दे के आम आदमी पार्टी को जिताया। और ये दिल्ली मॉडल पंजाब पहुंचा और पंजाब में वही सारे काम होने चालू हो गए जो दिल्ली के अंदर हो रहे थे। अब पंजाब के अंदर इन कामों के ऊपर दूसरी बार मोहर लगाई है पंजाब के लोगों ने। 2022 में 117 में से 92 सीट दी। आज 3.25 साल के बाद, इसका मतलब सरकार अच्छा ही काम कर रही होगी तभी लोगों ने 3.25 साल के बाद, मैं तो इसको आज सेमीफाइनल कहूंगा, 2027 का आज सेमीफाइनल हो गया। 4 में से 3 सीट देके पंजाब के लोगों ने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो, इसी तरह से काम करते रहो, 2027 में 92 से भी ज्यादा सीट देंगे। और अब फरवरी के अंदर दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, हम 2013 में जीते, फिर 2015 में जीते, फिर 2020 में जीते और अब 2025 के अंदर भी आम आदमी पार्टी इतिहास रचने जा रही है। इसी दिल्ली मॉडल को दिल्ली वाले दोबारा ऐतिहासिक बहुमत देंगे और शानदार बहुमत देके फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आज एक तरह से पंजाब के जो नतीजे हैं वो न केवल पंजाब के लिए पर दिल्ली के चुनाव के लिए भी मैं कहूंगा कि सेमीफाइनल हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई आज इस शानदार जीत के लिए। जो लोग आज तक जनता को देने वाली सुविधाओं को फ्री की रेवड़ी कहा करते थे, आज अपने अपने मैनिफेस्टो में हमारी बातें लिख रहे हैं। जा जाके हर राज्य में कह रहे हैं हम भी फ्री बिजली देंगे, हम भी महिलाओं को 1000-1000 रुपए देंगे, हम भी ये देंगे, हम भी।
अच्छी बात है। जनता का हमने कहा था हम गारंटी देंगे, आजकल वो कहते हैं हमारी भी गारंटी है, हमारी भी गारंटी है, हमारी भी गारंटी। अच्छी बात है, देश का भला होना चाहिए चाहे कैसे ही हो। भारत माता की।